Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss cytoplasmic inheritance and maternal effect. What is cytoplasmic inheritance? Inheritance is the transmission of characters from parents to offspring, or it is the resemblance of an offspring with their parents. Normally, the chromosomal genes are involved in the transmission of characters from parents to offspring. When the cytoplasm involved in the transmission of characters, when a cytoplasm involved in the transmission of genes, that type of inheritance is called cytoplasmic inheritance. And the effect that is produced by the transmission of the cytoplasmic genes, that is called maternal effect. Why it is called maternal effect? Because the from the mother side, always the cytoplasm is contributed in the formation of the zygote. That's why it is called the maternal effect. मेनली जो इनहेरिटेंस है दैट इज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियर जीन्स. जो नॉर्मली जो इनहेरिटेंस है उसको न्यूक्लियर जीन्स कंट्रोल करते हैं, उसको क्रोमोसोमल जीन्स कंट्रोल करते हैं, उसको हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का नाम दिया है. लेकिन सम केसेस में जो इनहेरिटेंस है उसको साइटोप्लाज्मिक जीन्स कंट्रोल करेंगे. जिस तरह क्लोरोप्लास्ट के जीन्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स हैं, जब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के जीन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, जब वो किसी करेक्टर को कंट्रोल करेंगे उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. इट इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. It is also called extra chromosomal inheritance or non-Mendelian inheritance. So the inheritance of the most of the characters of an individual is governed by nuclear genes. That is called chromosomal inheritance. But in some cases, the inheritance is governed by cytoplasmic factors or genes. कुछ केसेस में जो cytoplasmic factors या cytoplasm के genes characters को inherit करते हैं या control करते हैं. When the transmission of the characters from the parents to offspring is governed by cytoplasmic genes, it is known as cytoplasmic inheritance. Means when the cytoplasm involved in the transmission of characters, when cytoplasm involved in the inheritance, that is called cytoplasmic inheritance. As it is outside the nucleus, so it is called extranuclear. It is away from the nucleus, the chromosome extra chromosomal और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और ऑर्गेनेल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो जीनोम होते हैं वो ऑर्गेनेलिज में मौजूद. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल इनहेरिटेंस. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंडेलियन प्रिंसिपल इस पे फॉलो नहीं होते. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे. हमारे पास दो ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास अपना डीएनए है, जिनके पास अपना जीनोम है, उनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. एक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एनिमल के केस में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जबकि प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे. जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीन्स किसी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करेंगे, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, किसी कैरेक्टर को इनहेरिट करेंगे, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. सिंपली बिकॉज mitochondria and chloroplasts are found in the cytoplasm. As we know, during the fertilization, egg and the sperm fuses with each other. फर्टिलाइजेशन के दौरान एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं. जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एग का आता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दोनों आपके पास कहां से आ रहे हैं? वो एग से आ रहे हैं. तो इट मींस एग कंट्रीब्यूटेड both nuclear material and cytoplasmic material, while in case of the sperm the only nuclear material is contributed. So cytoplasmic contents from the maternal side, it is also called maternal effect. Very important slide in detail of the maternal effect or cytoplasmic inheritance. This is the egg and this is the sperm. एग आप देख रहे हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मौजूद हैं और इसमें न्यूक्लियर कंटेंट्स भी मौजूद है. तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग है वो न्यूक्लियर मटेरियल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि स्पर्म सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहा है. जब एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. तो इस जाइगोट में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो कहां से आया? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मदर साइड से आया. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहां से आया? वो एग से आया. जो साइटोप्लाज्म में जीन्स होंगे वो अब इस जाइगोट में ट्रांसफर होंगे. तो सो वी कैन से द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द फीमेल साइड. तो ओनली मदर गैमीट विल इनहेरिट द साइटोप्लाज्म.
जबकि जो फादर गेमीट है, जो मेल गेमीट है, it only carries the nuclear material. So zygote, that is the product, or that is the fusion of the sperm and egg. During this fertilization, this zygote formation, the cytoplasmic contents are received from the mother side or from the egg. So the characters that will transfer from this egg to the zygote or the offspring. That's why these characters are called maternal effect, or the mother effect, जो मदर की तरफ से, जो एग की तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं. The genes governing the characters showing non-Mendelian inheritance are located outside of the nucleus. वो जीन जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को या मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, उस वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होंगे. They are found in the cytoplasm. कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे. These are present outside the nucleus. These are present outside the chromosomes. These genes are called plasma genes. इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन्स बोलते हैं. इनको साइटोप्लाज्मिक जीन्स बोलते हैं, या इनको साइटोजीन्स भी बोलते हैं. इनको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स भी बोलते हैं. इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स, ये क्रोमोसोम से बाहर हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स, न्यूक्लियस से बाहर हैं तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स. अब कलेक्टिवली जो साइटोप्लाज्म में द टोटल जीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोन. जो साइटोप्लाज्म में जितने कलेक्टिवली क्लोरोप्लास्ट के हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, दोनों को कंबाइन करें, जो टोटल जेनेटिक मटेरियल बनेगा उसको प्लाज्मोन बोलेंगे. अगर सिर्फ प्लास्टिड के जीन्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टोम. द only plastid genes are called plastome. The only mitochondria genes are called chondriome. Three terms, both important. Plasmon, total genetic material in the cytoplasm. Plastome is the genetic material of the plastid, and the chondriome is the genetic material of the mitochondria. The mitochondria genes are abbreviated as the empty mitochondrial DNA, and the chloroplasts are the chloroplast DNA. cpDNA, that is the chloroplast DNA. The difference between the Mendelian inheritance and the cytoplasmic inheritance, the most important. Before going to discuss these differences or this table, we have to know about in Mendelian inheritance or in Mendelian genetics, there is an equal contribution of the characters from the both male and female. दोनों की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं. सो मेंडेलियन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहे हैं. जबकि इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेल और फीमेल की तरफ से डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्पर्म जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसमिट कर रहा है, जबकि जो एग है वो सिर्फ वो न्यूक्लियर मटेरियल भी कर रहा है, साथ साइटोप्लाज्म भी कर रहा है. सो इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देयर इज unequal distribution of the genetic material, while in the Mendelian inheritance or in Mendelian genetics, contribution is equal from the both sides. Equal number of chromosomes share, equal number of the genes share. So हम कह सकते हैं कि उसमें जो आपके पास Mendelian inheritance अप्लाई होता है, उसमें Mendelian inheritance अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसमें डिफरेंस है. इसमें कोई सिग्रीगेशन नहीं होगी, इसमें कोई सिग्रीगेशन नहीं होगी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में. तो ये डिफरेंसेस हैं. जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये न्यूक्लियर जीन कंट्रोल करते हैं. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को प्लाज्मा जीन्स या साइटोजीन्स, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, या साइटोप्लाज्मिक जीन्स वो कंट्रोल करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में है या क्लोरोप्लास्ट में है. सिग्रीगेशन पैटर्न डिस्टिंक्ट है, वेरी क्लियर है. सिग्रीगेशन को ये क्लियरली फॉलो करते हैं. इसमें सिग्रीगेशन नॉट डिस्टिंक्ट, सिग्रीगेशन पैटर्न फॉलो नहीं होता. इसमें हम नेक्स्ट लेवल डिस्कस करेंगे. रेसिप्रोकल डिफरेंसेस नॉट ऑब्जर्व्ड. रेसिप्रोकल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो मार्क डिफरेंसेस हैं, मीन जब हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऑलवेज रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, जबकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पेरेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस जरूरी नहीं है. रेसिप्रोकल डिफरेंस उसमें ऑब्जर्व होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में. अब व्हाट इज रेसिप्रोकल डिफरेंस, व्हाट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस? तो रेसिप्रोकल क्रॉस मेनली इट इज अ क्रॉस और द पेयर ऑफ क्रॉसेस बिटवीन द मेल ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द फीमेल ऑफ द another strand, or the female of the one strand and the male of the
अदर स्ट्रेन। जब एक के मेल को दूसरे के फीमेल के साथ या एक के फीमेल को दूसरे के मेल के साथ क्रॉस करेंगे उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस मेनली इट इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो मेनली ये डिजाइन हम करते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न में पेरेंटल सेक्स का क्या रोल है। पेरेंटल सेक्स जो आपका मेल या फीमेल आपके जो इनहेरिटेंस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल क्रॉस और रेसिप्रोकल डिफरेंसेस। मैटरनल इफेक्ट इसमें कोई मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऑब्जर्व नहीं होता। मैटरनल इफेक्ट वी हैव डिस्कस फ्रॉम द मदर साइड, और इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऑब्जर्व होता है मैटरनल इफेक्ट। जीन मैपिंग इसकी इजी है, इसकी काफी डिफिकल्ट है। लोकेशन ऑफ द जीन जहाँ पे क्रोमोसोम में होते हैं, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। The important characteristics features of the cytoplasmic inheritance are described below. इसमें important जो characters हैं reciprocal difference हम पढ़ चुके हैं। Characters which are governed by cytoplasmic inheritance mainly invariably exhibit marked differences in reciprocal crosses in F1, whereas in case of the nuclear inheritance such differences are not observed except in case of sexual inheritance। हम पढ़ चुके हैं अभी कि भाई जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसमें रेसिप्रोकल उसमें डिफरेंसेस आते हैं, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में डिफरेंसेस नहीं आते। मैटरनल इफेक्ट यू नो देयर इज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। दिस इज अ यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस मीन एक पेरेंट सारे जीन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो मैटरनल इफेक्ट्स इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक inheritance a distinct maternal effects are observed. This is mainly due to the more contribution of the cytoplasm to the zygote by the female parent. Female ज्यादा cytoplasm contents को contribute करती है than the male parent. Generally, ovum contributes more cytoplasm to zygote than the sperm. More cytoplasm कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है फीमेल से। तो स्पर्म पहले तो करता ही नहीं है कंट्रीब्यूशन, करता है तो वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो देयर आर द यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। मैपेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर जीन्स कैन बी इजीली मैप्ड ऑन क्रोमोसोम्स बट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैप साइटोप्लाज्मिक जीन्स और प्रिपेयर लिंकेज मैप फॉर सच जीन्स। नाउ क्लोरोप्लास्ट जीन्स इन द chlamydomonas and maize and mitochondrial genes in the human and genes have been mapped। ये मैप हो चुके हैं लेकिन है काफी डिफिकल्ट। नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन है। द मेंडेलियन इनहेरिटेंस एग्जिबिट टिपिकल सेग्रीगेशन पैटर्न, जिसमें हमने देखा 3:1 जो था मोनोहाइब्रिड में और 9:3:1 जो था डाइहाइब्रिड क्रॉस में। दैट इज कॉल्ड टिपिकल सेग्रीगेशन पैटर्न। Such typical segregation is not observed in case of the cytoplasmic inheritance, क्योंकि यहाँ पे यूनिपेरेंटल हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है किसकी जीन्स की। दैट्स व्हाई मेंडेलियन प्रिंसिपल typical segregation is not observed in the cytoplasmic inheritance. The segregation when occurs it is different from the Mendelian segregation. अगर होगी तो Mendelian से different होगी। This is because the F1 individuals generally receive plasma genes from one parent only, uniparental। uniparent mean कि जो genes कहाँ से हैं, सिर्फ mother। Somatic segregation है। Characters which are governed by cytoplasmic genes usually exhibit segregation in somatic tissue such as the leaf segregation. Such segregation is very rare for nuclear genes। ये nuclear genes के लिए बहुत कम होती है। Somatic cells में ज़्यादातर इसकी segregation होती है। Infection like transmission, cytoplasmic traits in some organism exhibit infectious like transmission। ये हम पढ़ेंगे examples में। They are associated with parasites, symbionts or viruses present in the cytoplasm. Such cases do not come under the cytoplasmic। तो समटाइम जो वायरसेस हैं या जो पैरासाइट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में, इट में आल्सो एग्जिबिट द ट्रांसमिशन, वो भी ट्रांसमिट होते हैं ड्यूरिंग दिस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लेकिन उसको हम कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो उसका उसका कंप्लीटली पार्ट नहीं है, ये एक्सीडेंटली उसका पार्ट बन गया है, तो इट मे बी ट्रांसफर। governed by the plasma genes, the true cases of cytoplasmic inheritance are governed by chloroplast or mitochondrial DNA। In other words, plasma genes are made of chloroplast DNA or the mitochondrial DNA। तो very important, just for the sake of revision, two types of organelles हैं, mitochondria और DNA having their own genome, mitochondria and chloroplast having their own genome। When these genomes are transmitted, that is called cytoplasmic inheritance। So these genes control different types of functions। Classes of cytoplasmic inheritance. There are three classes of cytoplasmic inheritance or non-Mendelian inheritance. One is called maternal effect, inheritance due to the infective particles, and cytoplasmic inheritance or plastid inheritance भी बोलते हैं इसको। मैटरनल इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन
डिटेल से हम इसकी एक एग्जांपल भी कोट करेंगे यहाँ पे। व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ ए character is influenced by the genotype of female parent, it is referred to as the maternal effect. इसमें फादर का जो भी जीनोटाइप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मदर के जीनोटाइप पे इफेक्ट हो रहा है, उस पे कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ ए character is influenced by the genotype of female parent, genotype of female parent, it is referred to as the maternal effect. Such characters exhibit clear cut differences in F1 for reciprocal crosses. What is reciprocal? मैं आपको बता चुका हूँ कि एक के मेल को दूसरे के फीमेल के साथ या एक के फीमेल को दूसरे को मेल के साथ जब क्रॉस करें, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल क्रॉस। तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। एग्जांपल क्या है? कॉइलिंग पैटर्न ऑफ शेल इन द स्नेल, दैट इज द लिमनिया पेरेग्रा। इसकी एग्जांपल को हम कोट करेंगे, कॉइलिंग पैटर्न ऑफ शेल इन द स्नेल लिमनिया पेरेग्रा। टू टाइप्स ऑफ कॉइलिंग पैटर्न है लिमनिया के पास, लिमनिया पेरेग्रा के पास। वन इज कॉल्ड द राइट हैंडेड और सेकंड इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंडेड। वन इज कॉल्ड द राइट हैंडेड, सेकंड इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंडेड। जो राइट हैंडेड कॉइलिंग है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, या उसको हम क्लॉकवाइज कॉइलिंग बोलते हैं, या जो लेफ्ट हैंडेड है उसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल कॉइलिंग या एंटी क्लॉकवाइज। Coiling pattern of the shell in the snail. The effect of the maternal genotype on the coiling behavior is in water snail was studied by the study one in इसको study किया था. There are two types of coiling pattern of shell in snail. Previous time discuss कर चुका हूँ. Limnia peregrina बोलते हैं scientific name है. That is the right-handed or clockwise, are the dextral, and the left-handed are the sinistral. The coiling behavior is controlled by a single gene. Coiling behavior is controlled by the single gene. The dextral coiling behavior is governed by the dominant allele D and the sinistral by the recessive allele small d. Dominant capital D होगा और recessive small d हमेशा control करता है. When a cross is made between the dextral female and the sinistral male, जब हम dextral female को sinistral male के साथ क्रॉस करेंगे, फीमेल को क्या है? डेक्स्ट्रल है, मेल क्या है? सिनिस्ट्रल है, तो इट प्रोड्यूसेस डेक्स्ट्रल स्नेल्स इन द F1 एंड एज वेल एज इन F2। F1 में और F2 में दोनों डेक्स्ट्रल, क्योंकि फीमेल क्या है? डेक्स्ट्रल है। However, in F3 segregation ratio of 3 dextral and 1 sinistral is observed. 3 dextral and 1 sinistral is observed, so there is no Mendelian inheritance and no Mendelian segregation follow. Similarly, when a reciprocal cross is made, reciprocal cross that is the sinistral as a female, यहाँ पे पहले क्या था? जो फीमेल था वो डेक्स्ट्रल था, अब यहाँ पे क्या होगा? सिनिस्ट्रल फीमेल है, मेल क्या है? डेक्स्ट्रल है, दैट इज द राइट हैंडेड। ऑल द स्नेल्स आर सिनिस्ट्रल इन F1, क्यों? कि फीमेल क्या है? सिनिस्ट्रल। जब फीमेल सिनिस्ट्रल होगा तो F1 में जो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द जीनोम ऑफ द मेल के पास जो भी जीनोम हो, लेकिन हमारा जो कंटेंट्स, क्योंकि ये जो सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स उसको कोड करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ओके। So sinistral is a female and the dextral is a male. All the snails are sinistral in F1 and dextral in F2. Dextral in F2. Again in F3 a ratio of the dextral and why in dextral in F2, ये next slide में आपको discuss कर रहा हूँ उसका. Again in F3 a ratio of the 3 dextral and 1 sinistral is observed. This indicates that the inheritance of coiling reaction in water snail depends on the genotype of female parent and not on its own genotype. Female के parent पे depend करता है, उसके अपने genotype पे depend नहीं करता. Have a look at the checkerboard. This is the dextral coiling. Dextral is the right hand. You know it is the clockwise. Right side पे coiling है तो dextral. Okay. Here it is the sinistral. Left side पे coiling है. Left side it is the anti-clockwise. So it is the sinistral and it is the clockwise, and right hand it is the dextral. पहले क्लास में डेक्स्ट्रल फीमेल है और सिनिस्ट्रल मेल है। डेक्स्ट्रल को कैपिटल डी से हम शो करेंगे, सिनिस्ट्रल को स्मॉल डी शो करेंगे। जब दोनों को क्रॉस किया, यहाँ पे आप चेकर बोर्ड खुद भी बना सकते हैं। जब F1 आएगा हमारे पास, गेमीट्स मैंने यहाँ पे शो नहीं किए, F1 में हमारे पास क्या आएगा? F1 में कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि इसका एक गेमीट कैपिटल डी, इसका गेमीट क्या है? स्मॉल डी, दोनों मिल जाएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी, तो इट इज द हेटेरोजाइगस डेक्स्ट्रल। क्यों डेक्स्ट्रल? फीमेल डेक्स्ट्रल है। जिसको सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ क्रॉस मीन कि इट जो हेटेरोजाइगस है कैपिटल डी स्मॉल डी, व्हेन इट इज क्रॉस विद द कैपिटल डी स्मॉल डी, जो आपके पास F2 आएगा, F2 में सारे के सारे क्या है? डेक्स्ट्रल है। क्यों? कि आपके पास जो
यहाँ पे जो जीन्स है वो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये भी डेक्स्ट्रल है, तो इसका क्या आएगा, 1 डेक्स्ट्रल, ये 2 हेट्रोजाइगस डेक्स्ट्रल और ये होमोजाइगस है लेकिन फिर भी डेक्स्ट्रल है। तो F3 में हमारे पास क्या आएगा, 1 डेक्स्ट्रल। जब इनको आपस में हम क्रॉस करेंगे किसी दो को भी तो वो डेक्स्ट्रल आएगा, और ये डेक्स्ट्रल होगा, एक ये सिनिस्ट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो सीन है वो डिफरेंट आ चुके हैं। अब रेसिप्रोकल क्रॉस पे देखें, यहाँ पे फीमेल क्या था, डेक्स्ट्रल था, यहाँ पे फीमेल क्या है, सिनिस्ट्रल है। फीमेल क्या है, सिनिस्ट्रल है। जब फीमेल सिनिस्ट्रल है तो मेल क्या है, डेक्स्ट्रल है। तो F1 में क्या होगा, सारे के सारे सिनिस्ट्रल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिनिस्ट्रल, लेकिन हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात ये है कि आपके पास हेट्रोजाइगस है लेकिन इसमें एक कैपिटल डी मौजूद है। जब उसको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे, इटसेल्फ इट इज सिनिस्ट्रल, इटसेल्फ ये क्या है, सिनिस्ट्रल है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है या एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, ये सिनिस्ट्रल है, लेकिन जब इसको आपस में क्रॉस करेंगे तो F2 में सारे के सारे डेक्स्ट्रल होंगे। आपके नोट्स में इसको सिनिस्ट्रल किया हुआ लेकिन इसको आपने डेक्स्ट्रल करना है। ऑल आर डेक्स्ट्रल, आर आल डेक्स्ट्रल। क्यों कि इसके पास जो आपके पास जीनोम जो जीन है, ये फीमेल जो भी है इसके पास क्या है, कैपिटल डी मौजूद है। तो सारे के सारे क्या होंगे, डेक्स्ट्रल होंगे। ये भी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये दो कैपिटल नहीं है, एक कैपिटल डी दूसरा स्मॉल हेट्रोजाइगस। जब उसको हम नेक्स्ट क्रॉस करेंगे तो दो डेक्स्ट्रल होगा और एक सिनिस्ट्रल होगा। पूरी कहानी का मकसद क्या है कि जो फीमेल का जीनोम होगा वही आपके ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर होगा। Okay, shell coiling in the hermaphrodite snail, that is the linear paragram, may be right-handed, dextral or the left-handed sinistral. The coiling depends on the genotype of the egg donor parent, regardless of the genotype of the parent. If the parent is DD or capital D, capital small d, the offspring will be the dextral. ओके अगर हम एक दूसरी एग्जांपल इसकी कोट करना चाहें आपकी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, उसमें हमारे पास पिगमेंट इन द फ्लोर मोथ, pigment in the floor moth. It was reported by the Kasperi in 1936. The production of the pigment is related to the substance that is the canurenin. Canurenin. अब ये जो जिस फीमेल में पिगमेंट होगा वो अपने ऑफस्प्रिंग को पिगमेंट ट्रांसफर करेगा। Maternal inheritance in mammals. Maternal effects in mammals are very prominent because mammals mothers may affect the development of their offsprings not only through the ovum cytoplasm but also through the uterine environment. जो mammals है उसमें maternal effects ज्यादा prominent क्यों है, इसलिए कि एक तो वहां पे cytoplasm ज्यादा contribute हो रहा है, दूसरा साथ वो uterine environment सारा फीमेल की तरफ से आ रहा है, फ्रॉम द मदर की तरफ से आ रहा है। इफेक्ट ऑफ द मैटरनल RH blood group on the developing fetus in humans and that of the maternal genotype for hair loss genes on the survival of young embryos in mice are the examples of maternal effects. Other example of maternal effects in the human are the embryonic defects caused by the maternal diabetes and maternal phenylketonuria, a maternal influence on the left or the right-handedness, and the maternal effects on the body weight. These are different maternal effects that can be quoted as example of the maternal effect. Next, inheritance involving the infective particles. This is the second example of the cytoplasmic inheritance. To understand this inheritance of infective particles, we have to quote the example of the Kappa particle in Paramecium. Kappa particle in the Paramecium. In some cases, cytoplasmic inheritance is associated with the infective particles like parasites, symbionts, or viruses which are present in the cytoplasm of an organism. However, such cases are not considered as true examples of cytoplasmic inheritance. इसकी ये true examples तो हम कोट नहीं कर सकते, लेकिन cytoplasmic contents वो ट्रांसफर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, Kappa particle in Paramecium. जो Paramecium का नाम है वो है Paramecium orulera. Paramecium orulera. This was explained by the Sonborn in 1943. 1943 में Sonborn ने इसको explain किया. Before going to discuss the contents, there are two types of strands in the Paramecium. Paramecium के पास दो स्ट्रैंड्स हैं, एक को हम बोलते हैं किलर स्ट्रैंड, दूसरे को हम बोलते हैं सेंसिटिव स्ट्रैंड्स। अब किलर स्ट्रैंड और सेंसिटिव स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है? किलर स्ट्रैंड्स के पास के जीन्स कैपिटल जीन होगा, उसके साथ कैपा पार्टिकल होगा। के जीन्स और कैपा पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द किलर स्ट्रैंड। जबकि जो सेंसिटिव स्ट्रैंड होगा, अगर कैपिटल जीन या जो कैपा पार्टिकल है इनमें से दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा। वो क्या होगा, सेंसिटिव। क्यों? कैपा पार्टिकल प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज कॉल्ड पैरामाइसिन, वो पैरामाइसिन प्रोड्यूस करता है। इफ
a strand having both capital dominant gene K and the Kappa particle, that is called the killer. If anyone is absent, if capital K is absent or the Kappa particle is absent, that strand is called the sensitive strand. That strand is called sensitive strand. अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा? ये mainly we know that there is no sexual reproduction in the paramecium, but the reproduction is done by the conjugation. कंजुगेशन के जरिए जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए इसकी जो कंटेंट्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पैरामीशियम. Number one is called, one has Kappa particle in its cytoplasm and the other has does not have the particles. मैंने कहा एक को killer strands, दूसरे को बोलते हैं sensitive strand. The presence of the Kappa particle in the cytoplasm leads to the production of a toxin known as the paramycin. Paramycin. This toxin can kill the strand of paramecium which lacks Kappa particle. Thus, the strand with Kappa particle is known as the killer strand and without Kappa particle is called the sensitive strand. But Kappa particle के साथ capital gene का होना जरूरी है. Multiplication of the Kappa particle in the cytoplasm takes place by fission. However, their multiplication is governed by the dominant nuclear genes capital K, both must be there. They can multiply in the homozygous dominant or heterozygous conditions. Kappa particle cannot multiply in recessive K individual. ये recessive में multiply नहीं हो सकता. That's why recessive condition में दोनों मौजूद नहीं होंगे. Even if Kappa particle are introduced into the homozygous recessive strand, they will gradually disappear due to their inability to multiply and the strand will become sensitive. It is also called nucleocytoplasmic inheritance because इसमें cytoplasm और nucleus दोनों involve हो रहे हैं. This is the sketch. आप देख सकते हैं किलर स्ट्रैंड है और सेंसिटिव स्ट्रैंड है. किलर स्ट्रैंड में कैपिटल के मीन डोमिनेंट जीन के साथ कैपा पार्टिकल मौजूद है, जबकि सेंसिटिव स्ट्रैंड में ना उसमें कैपिटल जीन मौजूद है ना उसमें कैपा पार्टिकल मौजूद है. जब दोनों में कंजुगेशन फॉर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंजुगेशन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कंजुगेशन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन. इफ कंजुगेशन इज लेस देन 3 if conjugation is less than 3 minutes, if conjugation is less than 3 minutes, अगर 3 मिनट्स से कम कंजुगेशन होगी तो सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स हैं, जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, वो एक्सचेंज होंगे. सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जीन्स एक्सचेंज होंगे. तो कंजुगेशन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली. इसमें देखें आप कैपिटल के और स्मॉल के आया, इसमें कैपिटल के और स्मॉल के, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हुआ. जब शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सचेंज होगी, लेस देन 3 मिनट की एक्सचेंज होगी, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर जो आपके पास जीनोम है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ट्रांसफर नहीं होगा. नो एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म. सो इसमें सिर्फ कैपा पार्टिकल जहां इसमें मौजूद है, इसमें कैपा पार्टिकल मौजूद नहीं है, ये सेंसिटिव ही रहेगा और ये किलर होगा क्योंकि इसके पास दोनों कैपिटल के मीन डोमिनेंट है होमोजाइगस कंडीशन में और इसके पास कैपा पार्टिकल भी है. इसके पास कोई कैपा पार्टिकल भी नहीं है, ना डोमिनेंट जीन मौजूद है. इसके पास डोमिनेंट जीन तो मौजूद है लेकिन इसके पास कैपा पार्टिकल मौजूद नहीं है. इसके पास दोनों क्या है, दोनों आपके पास हेटेरोजाइगस हैं. सो इट इज सेंसिटिव, इट इज किलर. तो as I have discussed, both kappa particle and the capital gene must be there for the killer strand. In other strand, if the conjugation is for long time, आपकी स्लाइड्स में अगर शार्ट उसको लॉन्ग करेंगे मोर देन 3 मिनट्स, इट इज किलर स्ट्रैंड, इट इज अ सेंसिटिव स्ट्रैंड. कैपा पार्टिकल भी है और डोमिनेंट जीन मौजूद है. जब कंजुगेशन क्या होगी, ये कंजुगेशन हो रही है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर मोर देन 3 मिनट्स, जिसमें जीन भी एक्सचेंज हो रहे हैं और इसमें आपके पास कैपा पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं. अब देखें आपके पास यहाँ पे कैपिटल के स्मॉल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है लेकिन कैपा पार्टिकल मौजूद है, इसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है लेकिन कैपा पार्टिकल मौजूद है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है. सो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. जब इसको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे या इसको ऑटोगेमी करेंगे तो ऑटोगेमी के बाद इसको हमने कैपिटल के स्मॉल के है, इसको आपस में जब हमने क्रॉस किया तो कैपिटल के स्मॉल के जब इसको हमने चक्कर बोर्ड बनाया तो हमारे पास ये जो तीन है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों किलर स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, ये सेंसिटिव स्ट्रैंड है. तो इट मींस ये सेंसिटिव स्ट्रैंड, किलर स्ट्रैंड, सेंसिटिव स्ट्रैंड और किलर स्ट्रैंड 3:1 वाला यहाँ पे F3 में जाकर ये ट्रांसफर हो सकता है, अप्लाई हो सकता है. सो इन समरी वी कैन से दैट इफ द कंजुगेशन इज फॉर शॉर्ट टाइम लेस देन 3 मिनट, ओनली साइटोप्लाज्मिक, ओनली न्यूक्लियर जीनोम ट्रांसफर, नो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ट्रांसफर, no transfer of the Kappa particle. If conjugation is for more than 3 minutes, both cytoplasmic contents and the nuclear genome transfer and the strand will become killer strand.
सो हमें क्या मालूम हुआ, इट इज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के न्यूक्लियर मैटेरियल ट्रांसफर हुआ, साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल ट्रांसफर हुआ, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कंटेंट्स ने उसको क्या बनाया। The third is the cytoplasmic inheritance. हम पढ़ चुके हैं. The true cytoplasmic inheritance is one which involves the plastid, chloroplast, and mitochondria. The cytoplasmic inheritance is again of two types: plastid inheritance or the mitochondrial inheritance. पढ़ चुके हैं पहले. The former is applicable for the plants only because plastids are found only in plants. The mitochondrial inheritance is common for both plants and animals. क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं. द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज गवर्न बाय जीन्स व्हिच आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. द जीन्स व्हिच गवर्न साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर कॉल्ड द प्लाज्मा जीन्स और द साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर द साइटोजीन. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन. और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, दीज जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. The important feature of the cytoplasmic DNA in comparison to nuclear DNA, हम पढ़ चुके हैं. The cytoplasmic DNA is of two types: chloroplast or the mitochondria. The cytoplasmic DNA is usually circular molecule. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो cytoplasmic DNA है वो ज्यादातर सर्कुलर होता है, एक्सेप्ट द सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो हम सिलिया पैरामीशियम लाइक है, उसमें लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए मेनली क्या होता है, मेनली लीनियर होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होगा. The senses of chloroplast DNA and mitochondrial DNA continue throughout the cell cycle. ये सेल साइकिल, पूरे सेल साइकिल के दौरान इसने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना. जबकि सेल के जो न्यूक्लियर डीएनए है उसने ओनली इंटरफेस के दौरान क्या होना है, उसने मल्टीप्लाई होना है. इंटरफेस दैट इज द सेंसिस फेस के दौरान. Cytoplasmic DNA replicates both in the chloroplast and mitochondria in a semi-conservative fashion. अब semi-conservative fashion क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे डीएनए replication में कि half original और half new strand हो, that is called the semi-conservative fashion, where the nuclear also replicate in semi-conservative but in chromosome. Both cytoplasmic and nuclear DNA are the liable to mutation. दोनों में mutation होती है. Mutation of cytoplasmic DNA leads to the change in the behavior of plasma genes, and mutation of the nuclear DNA leads to alteration in the nuclear genes. Cytoplasmic DNA is capable of the coding for RNA and protein synthesis like the nuclear RNA. Cytoplasmic DNA भी RNA बनाते हैं, उससे फिर प्रोटीन्स बनती हैं. In vitro synthesis of cytoplasmic DNA is possible in respective organelles. इसमें हम in vitro synthesis कर सकते हैं, DNA की भी nuclear DNA की भी in vitro synthesis हो सकती है. The synthesis of cytoplasmic DNA is blocked when treated with ethidium bromide, flavin and actinomycin D. Similar the case with the nuclear DNA. न्यूक्लियर डीएनए को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं. तो डिफरेंस कैसे करेंगे? Found in the cytoplasmic DNA found in the chloroplast and mitochondria, very common. Nuclear DNA found in the chromosomes, usually circular except in the ciliate protozoa where it is linear. Linear in eukaryotes, circular in prokaryotes. Senses continue throughout the cell cycle. जब भी सेल साइकिल होगा, थ्रू द सेल साइकिल के दौरान ये कंटिन्यू होते रहते हैं, जबकि सेंसेस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द इंटरफेस, दैट इज द एस इंटरफेस के भी एस फेस के दौरान. इंटरफेस में हमारे पास डिफरेंट फेस होते हैं, G1S और G2, वो हम डिस्कस करेंगे. रिप्लिकेट इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, रिप्लिकेट इन द plastid inheritance. That is the third example of the cytoplasmic inheritance. It is the inheritance in the plants. So plastid inheritance, it is mainly observed in the Mirabilis jalepa. The chloroplasts are the important plastids. Plastids have green pigment called the chloroplast. Plastids self-duplicate, have some amount of DNA and play important role in the cytoplasmic inheritance. इसमें एग्जांपल क्या कोड करते हैं, Mirabilis jalepa 4 o'clock प्लांट की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट conclusive evidence of cytoplasmic inheritance was reported by Corons in 1909 for leaf color in the 4 o'clock plant, that is the Mirabilis jalepa. Mirabilis jalepa में लीफ कलर की इनहेरिटेंस को कोट किया कोरन साहब ने, और 1909 में तो उन्होंने फर्स्ट कंक्लूसिव एविडेंस दिया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है. इसमें हमारे पास जो Mirabilis jalepa है उसमें 3 types of branches होती हैं. 3 types of branches. One is called green branches or leaves, second is called the pale green, and third is called variegated. जब लीव्स ग्रीन होंगे तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ओरिजिनल वाइल्ड टाइप, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. जब पेल ग्रीन होगा तो उसमें म्यूटेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसको हम ल्यूकोप्लास्ट भी बोल सकते हैं. और वेरीगेटेड में ऑल 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों होंगे. तो जब भी हमारे पास जो एग है, अगर एग ग्रीन आएगा, एग में अगर कलर ग्रीन होगा, वट एवर द टाइप ऑफ मेल, तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे ग्रीन होंगे. अगर एग पेल है और वट एवर टाइप ऑफ मेल अगर आप क्रॉस करेंगे तो जो आपके पास ज़ाइगोट होगा, जो ऑफस्प्रिंग सारे के सारे क्या होंगे, पेल होंगे. अगर एग
वेरीगेटेड है तो आपके पास जो नेक्स्ट में होगा वो सारे वेरीगेटेड होंगे. When a green was used as a female and either green, white or the variegated male, male जो भी हो, अगर female green है तो R and used in the green, F1 are green. When the white was used as a female and either green, white or variegated male, male जो भी हो, green हो, white हो or variegated. Variegated means variegated mean some part is green, some part is non-green. ठीक है, वेरीगेटेड में सम पार्ट ग्रीन होते हैं, सम पार्ट नॉन ग्रीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरीगेटेड. ऑल द इंडिविजुअल्स इन द F1 आर वाइट, क्योंकि फीमेल क्या है, वाइट है. अगर व्हेन वेरीगेटेड वाज यूज्ड एज अ फीमेल, अगर वेरीगेटेड फीमेल होगा तो मेल जो भी हो, ग्रीन हो, वाइट हो, वेरीगेटेड हो, तो वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड इंडिविजुअल्स वर ऑब्टेन्ड. सो मैटरनल इफेक्ट्स इनहेरिटेंस. तो डायग्रामेटिक हम कह सकते हैं, ग्रीन फीमेल है तो मेल जो भी हो, ग्रीन हो, वाइट मीन पेल आर द वेरीगेटेड, तो आप सब सारे के सारे ग्रीन होंगे, क्योंकि फीमेल की तरफ से क्या आ रहा है, ग्रीन. अगर फीमेल वाइट है, यहाँ से ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड कोई भी हो, तो आप सब क्या होंगे, वाइट. अगर फीमेल वेरीगेटेड है और आपके पास जो मेल है, ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड, तो इसमें ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड इन वेरियस रेशियोज में आएंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन प्लांट ब्रीडिंग. Cytoplasmic inheritance has been useful in explaining the role of various cytoplasmic organelles in transmission of characters in different organisms. Cytoplasmic organelles की जो inheritance है, उसकी जो characters है, उसको ट्रांसमिशन में easily explain करते हैं. Studies of cytoplasmic inheritance have played a key role in mapping of chloroplast and mitochondrial genome in several species, yeast, chlamydomonas, maize, and humans. Development of the cytoplasmic male sterility के लिए cytoplasmic male sterility lines have been developed in several crops like the maize, pearl millet, sorghum, cotton. Availability of the cytoplasmic male sterility lines has facilitated the production of the hybrid seeds in these crops at a cheaper cost than with hand masculation and the pollination method. The CMS, that is the cytoplasmic male sterility cytoplasm, can be easily transferred to various agronomics bases for their use in the development of superior hybrids. इसको हम agronom के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. superior hybrid के तौर पर CMS based hybrids have danger of uniformity. It is desirable to utilize various CMS sources. Role of mitochondria and the manifestation of the heterosis is gaining increasing importance in these days. Heterosis हम discuss करेंगे डिटेल से. Mutation of the chloroplast DNA and mitochondrial DNA leads to the generation of new variants. Some of the such variants are special significant, especially in ornamental plants. तो ये भी उसकी एक बहुत importance है. तो other example अगर हम quote करना चाहें तो that is the cytoplasmic male sterility, cytoplasmic inheritance. Sigma virus and Drosophila melanogaster are the milk factor in the mice. These are other examples of cytoplasmic inheritance. So this is all about the cytoplasmic inheritance. We have discussed about the cytoplasmic inheritance. What is cytoplasmic inheritance? क्या होता है? उसके बाद हमने उसकी जीनोम की बात की कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में अपने जीनोम होता है, अपने जीन होते हैं, वो इनहेरिट होते हैं. और उसके बाद जो हमने 3 एग्जांपल्स कोट की, स्नेल शेल कॉइलिंग, और फिर प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन द माइलाबेलस चिलेपा, और कैपा पार्टिकल इन द पैरामीशियम. These are 3 examples of cytoplasmic inheritance and the maternal effects. We have also discussed other examples of maternal effects in the mammals. If you have any question, that's all about the cytoplasmic inheritance and maternal effects. Thank you so much. If you have any questions, you can ask in the comments. Thank you so much.